Okay, so now we will go through this goods under reverse charge mechanism. What happens in reverse charge mechanism? Recipient is liable to pay tax to the government. Okay, this is the only meaning of reverse charge mechanism. Okay, dealer is not paying. On the other part, this recipient is going to pay the taxes to the government. Okay, that's why it is called reverse. Reverse means it is opposite of forward charge. What happens in forward charge? Dealer is collecting tax and paying it to the government. Okay, so if it is reverse charge, it will be given in the question that it is either it is RCM or reverse charge mechanism, or reverse charge word will be used. Okay, what happens in case of this? In case of goods, what you do, you have to take the date on which goods received and date of invoice plus 30 days you will have to do. Okay, now the question is whether we should ignore the payment date. No, we should not ignore anything like that. ठीक है, so ये notes में थोड़ा सा मुझे changes भी करना पड़ेगा, but you will take goods on which date on which goods received and date of invoice plus 30 days and payment date also you will consider. Whichever is earlier you will take it. Okay, there is required some changes here. Okay, so payment date is considered in case of reverse charge mechanism, but it is not given here. So the earlier of these three things, that is date on which goods received, date of invoice plus 30 days and payment date, whichever is earlier, will be treated as time of supply in this case. Okay, so I will correct it and then I will resend it. Okay, now we will start with this. Where is reverse charge mechanism? Okay, just look at this question. The question is the case of goods. You can see the date of receipt of goods is given in the question and the word RCM is used here. Okay, so this is the case of goods under RCM. Okay, reverse charge mechanism. Okay, so what you will have to do, you will have to take invoice date plus 30. Invoice date plus 30. ओके, मतलब इनवॉइस डेट में प्लस 30 आपको ऐड करना है. ठीक है, इन केस ऑफ गुड्स 30 डेज ऐड होते हैं, इन केस ऑफ सर्विस आरसीएम में 60 डेज ऐड होते हैं. ठीक है, तो वो अभी तो आया नहीं है, वो जब आएगा तब हम लोग वो सीखेंगे. ठीक है, सो गुड्स के केस में हम लोग इनवॉइस में 30 डेज प्लस कर देंगे और क्या, बाकी की चीजें तो दी हुई है, बस अर्ली सिलेक्ट करके आपको ले लेना है. ठीक है, तो सिर्फ जो गुड्स का मूवेबल और इमूवेबल पार्ट था फॉरवर्ड चार्ज में, उसी में हम लोग पेमेंट डेट कंसिडर नहीं करते थे. ठीक है, यहाँ पर आपको करना है. ठीक है, अदर देन दिस आपको क्या करना है, पेमेंट डेट को कंसिडर करना पड़ेगा. ठीक है, तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे. ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा. फर्स्ट अगर हो जाएगा तो उसके बाद आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि इसको कैसे आपको आंसर करना है. वैसे आज का हमारा एक्सेल होगा ना, उसी को कंटिन्यू करते हैं. दिस इज द क्वेश्चन, कॉपी करते हैं नीचे. ठीक है, क्वेश्चन नंबर चेंज करते हैं. क्वेश्चन नंबर वाज 21. क्वेश्चन नंबर इज 21. क्या क्या दिया है वो भी डेटा भी चेंज कर देते हैं. इनवॉइस डेट दिया है पहले तो जगह चेंज करना पड़ेगा. ये सब ब्लैंक कर देते हैं ना. मे बी और भी कॉलम्स यहाँ पे यूज हो तो. ओके, इनवॉइस डेट है, डेट ऑफ इनवॉइस और इनवॉइस डेट प्लस 30 करना है आपको यहाँ पे. ये एक एडिशनल चीज होगी जो आपको करना पड़ेगा. डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ पेमेंट. ठीक है, आइडियली ये 3 ही डेट्स होती है जो कि आपको दी होती है. अगर आरसीएम है तो सिर्फ इतना ध्यान देना है, गुड्स के केस में प्लस 30 डेज आपको करना पड़ेगा. दैट्स इट. ओके, सो हियर द इनवॉइस डेट इज 20
12/2019. Okay, here it is 16/11/2019. Sorry, गलत लिख दिया। सर गलत हो और डेट ऑफ पेमेंट इज 29/11/2019. ओके, प्लस 30 डेज करना है आपको। थोड़ा सा नीचे वर्किंग नोट बना लेते हैं प्लस 30 डेज करने की। ओके, मुझे एक बात बताओ कि प्लस 30 डेज होगा तो क्या हो जाएगा इसमें? 21/2020 19 Jan 19 जैन बोल रहा है कोई तो। हाँ 19 Jan ओके, 2020. 19 जैन 2020 2020। ओके, चलो अभी इसको जिसने कर लिया वो तो कर लिया, अभी हम लोग इसको फाइनल करते हैं कि कैसे आएगा। ठीक है, तो ये 2019 जो है इसमें आपको करना है प्लस 30। ठीक है, तो ये हो जाएगा 50/12/2019। करेक्ट है। अब ऐसी कोई डेट तो होती नहीं है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये 50 में से दिसंबर के मंथ को आपको माइनस करना पड़ेगा। और दिसंबर के मंथ कितने होते हैं? 31 31 है ना। तो आपका आंसर क्या आएगा? 19/12/2019। गुड। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है, पहले प्लस 30 करना है, फिर उसके अंदर उस ईयर उस मंथ के डेज आप क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जिसने कॉमन सेंस भी यूज करके कर लिया, डायरेक्ट डायरेक्ट कर लिया आप लोगों ने कि दिसंबर में 31 डेज होते हैं, तो जो आने वाला जो डेज होगा वो एक दिन पहले का होगा। ठीक है, ये इतना अगर आप लोग ने सोचा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप डायरेक्ट डायरेक्ट कर सकते हैं अगर आपको पता है तो। ठीक है, तो ये था 19 जनवरी 2020, सॉरी 2020। ठीक है, अब इन तीनों का जो अर्लियर होगा वो आपका यहाँ पर टाइम ऑफ सप्लाई मालूम करने का था। ठीक है, इन तीनों का जो होगा वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई, जिन तीनों का अर्लियर जो है, क्या आएगा इसमें से अर्ली? Date of receipt of goods, sir. 16 हाँ, डेट ऑफ रिसीप्ट 11 ऑफ गुड 2019. 16/11/2019 ठीक है, समझ गया। वैसे बहुत पकाऊ चैप्टर होता है, इट मींस लाइक डेट्स वगैरह ना देखने बहुत पकता है मेरे को। डेट में ना सर हाँ यही है, क्या कर सकते हैं, बट क्वेश्चन आते हैं तो एग्जाम में हम लोग को करने Dates हैं। पसंद ही नहीं है सर. हाँ ना, सच में। और ऐसा प्रैक्टिकल करने मिले डेट्स वगैरह ना तो बहुत, और डेट्स में तो ना मेरे से मिस्टेक हो जाती है हमेशा, तो ये तो और एक। ओके, अब वापस से हम लोग क्या करेंगे, इधर पे ले लेते हैं 14 दिसंबर 2020। कितना प्लस करना है? 30। 30 तो प्लस 30 करने के बाद ये 14 का कितना 44. हो जाएगा? 44 हो जाएगा। 44 अब फेब्रवरी में 2020 में फेब्रवरी में कितने डेज थे? 28. 28 श्योर? श्योर? 28 सर थे या लीप ईयर था ना 29? सर. हाँ तो 28 सर सर. लीप ईयर था सर आपने ही तो सिखाया था 4 का टेबल. हाँ बेटा मैंने ही सिखाया था। तो 28 होते हैं या 29 होते हैं लीप ईयर में? 29 सर, सॉरी. हर हाँ साल 28 होता है, इसमें 29. हाँ, तो 29 होगा। ठीक है, तो 44 माइनस 15 29 इज 15। तो 15 15 मार्च हो गया। मार्च 2020 ठीक है, सो दिस इज 15। सर इसी दिन हमारा कॉलेज बंद हुआ था सर, आखिरी दिन. एलेक्स बस हो गया। लेक्चर रिकॉर्ड होता है, दुखती तुम नस लोग पे ध्यान हाथ से रख रहा है बोला। लेक्चर रिकॉर्ड होता है, तुम लोग ध्यान से बोला करो। ठीक है, और वो भी एकदम इंस्टेंट निकल गया उसका। ओके, सो अर्लियर ऑफ दिस 3 डेट्स विल बी, मुझे तो सर 14, 14. हाँ 14। 14 एलेक्स को ये भी डेट पता है ना एलेक्स? नहीं सर, मतलब सबको पता है. हाँ हाँ, एलेक्स को तो बहुत कुछ पता वही। है चल 24 अगस्त
2020 और 30th अगस्त 2020 और 15 फरवरी 2020। ठीक है, अब इनवॉइस में प्लस 30 डेज करना है तो पहले इनवॉइस डेट इज 24 अगस्त 2020, इसमें 30 प्लस कर देंगे तो 54 हो जाएगा। सर हम लोग को भी इतना कैलकुलेट करने की जरूरत है क्या? ना, ऐसा करने की जरूरत बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो 54 में से हम लोग माइनस करेंगे, अगस्त में कितने डेज होते हैं? 31। 31 31 तो ये हो जाएगा 23। अगस्त के बाद क्या आता है? सितंबर। ठीक है, ये आपका आ गया यहाँ पर। अब देखेंगे इनमें 15 से अर्ली अगस्त। क्या है। 15 फरवरी स्लैब डे होता है ना? 15 फरवरी, पता नहीं, मैंने तो कभी खाया नहीं है। अरे सर, जिसको पता होता है वही सबसे ज्यादा। अरे मुझे नहीं पता है। तो सर याद कैसे आ गया आपको स्लैब डे? अरे ऐसे ही कुछ सुना था, बाद में ऐसे ही होते हैं तो इसीलिए बोल दिया बस। अरे सर कॉलेज में पढ़ाते हैं, खाते हुए देखा रहेगा किसी को। हाँ, वो महेश जैसे ही दिख रहा था मुझे तो, है ना? अभी हैंडसम भी है महेश, तो हो सकता है ऐसे केसेस होते हैं कभी कभी। कोई बात नहीं, जल्दी। ओके, अभी इसकी बारी है। 16 मई 2020। ठीक है, नाउ वी विल ऐड 30 days, इट विल बिकम 36। ठीक है, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ हाँ मैं सर। हाँ हाँ ओके। 30 हो गया, 36। ठीक है, अब 36 मतलब मई में 31 डेज होते हैं, तो 36 minus 31 comes to 5th of June। ठीक है, तो ये इधर से कॉपी यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, वापस कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ओके, नाउ अर्लियर ऑफ दिस 3 डेट विल बी 5th June। 5th June। Okay, now only two are remaining, 6, 7, 2020. Then we have 6, 7, 2020। अच्छा, मुझे मालूम है तुम लोग बोल रहे हो सर मत करो, हम लोग कर लेंगे, लेकिन ठीक है करके दे दो पानी। इधर पे कैलकुलेट करते हैं। डे है 6, 7, 2020। We will add 30, it will become 36, 7, 2020। We will minus जुलाई में तो होता है 31 days, so 36 minus 31 comes to 5th। 5th of what? सेम डे था या नहीं? सेम डे नहीं, अगस्त। ठीक है, 5th अगस्त यहाँ पे ले लिया। अब इन सब में से अर्ली डेट कौन सी दिख रही है मुझे? तो ये 5th 6 अगस्त। जुलाई, ये 6 जुलाई ना? हाँ सर, सॉरी। हाँ 6th जुलाई। कोई बात नहीं, होता है लेट्स। स्लैब डे का आने के बाद शायद तो भूल गया, आगे कुछ याद नहीं आ रहा था। अरे मैं खुद भी भूल गया। टॉपिक ही आपने निकाला था ना सर। टॉपिक आपने निकाला था। इसलिए भूल गया ना। टॉपिक तो सर एक बाकी है, रिकॉर्डिंग बंद होने दो उसके बाद। अच्छा अच्छा, सब धमकी दे रहे यार तुम लोग तो। 16th अक्टूबर है, प्लस करो 30 तो इट विल बी 44 10 2019। देन वी विल डिडक्ट 44 माइनस अक्टूबर में भी 31 डेज होते हैं, सो इट विल बी 13th ऑफ नवंबर ना। अरे मेरा डेट ऑफ बर्थ, अरे तो चलो अभी इसमें से 2 जुलाई सर। 2 जुलाई। 2nd जुलाई।
ठीक है, अब ये था सॉल्यूशन नंबर 21, ये पूरा आ जाएगा ना, दिखेगा बराबर, क्या पता नहीं, देखते हैं, व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करता हूँ, नहीं तो फिर थोड़ा सा छोटा करके फिर फॉरवर्ड करना पड़ेगा। हो गया, क्लियर है, चलो। ओके, सो दिस इज डन। और ये सब की तो खाली कैलकुलेशन आपको दिए थे, तो ये सब की जरूरत नहीं है, इवन एग्जाम में भी आपको जरूरत नहीं होगी इसकी वर्किंग नोट की। सो एज फार एज योर आंसर इज करेक्ट, ये जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होता है, दैट इज यू हैव टू रिमेंबर इट करेक्टली। और यहाँ पे इनवॉइस डेट प्लस 30 भी चेक होता है, बिकॉज दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कैलकुलेशन, तो यहाँ पे ये भी चेक होता है, ठीक है। ओके, किसने चैट बॉक्स में कुछ रखा है? सर महेश के साथ बस स्टॉप। ओके, ठीक है, दिस इज डन। और आरसीएम हो गया, तो गुड्स के केसेस हम लोग ने कंप्लीट कर लिए हैं। गुड्स में और कुछ मिसलिनियस केसेस भी आते हैं, फॉर एग्जांपल आपको सर्विस आ गया है, तो सर्विस का केस 1 एंड 2। ओके, रेसिपिएंट, हाँ, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ही आपको करवा पाऊंगा। कितना है? 10। ओके, और डेट ऑफ, ये इजी है, कंटिन्यूअस सप्लाई हम लोग कर लेते हैं क्योंकि ये एंड हो जाएगा कंटिन्यूअस सप्लाई इजीली। यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, डेट ऑफ रिमूवल में 6 मंथ कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट, ये तीनों का जो है वो अर्ली ले लेंगे यहाँ पे। अगर ये क्वेश्चन यहाँ पे होगा तो आपको समझेगा, मतलब सर 6 मंथ ऐड करने का प्लस ऐड वापस? करना है, यस यस यस, ऐड करना है। बाप रे। गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस का मतलब क्या होता है पता है ना आपको? नहीं गुड्स सर। ऑन अप्रूवल, अप्रूवल बेसिस का मतलब क्या होता है कि अभी आप जाते हैं कि अगर आपको घर में पसंद आएगा, किसी को नहीं पसंद आएगा, तो आप क्या करते हैं, बहुत सारे गुड्स वहां से ले लेते हैं और घर पे लेके जाते हैं, उसको आप पसंद करवाते हैं, उसमें से कुछ पसंद आता है, कुछ नहीं आता है, ठीक है। फिर आप पसंद करते हैं उसमें से, तो आप वो चीज खरीदते हैं, दैट इज गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। अप्रूवल मतलब इट इज नॉट अ सेल, इट इज ऑन अप्रूवल बेसिस, मतलब अगर सामने वाला अप्रूव करेगा तो ही वो क्या होगा, सेल होगा, ठीक है। तो गुड्स ऑन अप्रूवल बोलते हैं इसको, मतलब आपने गुड्स को भेजा है किसी के पास, वो अप्रूव होगा तो वो सेल हो पाएगा, ठीक है। तो ऐसा होता है समटाइम्स आप रिमूव करते हैं गुड्स को, लेकिन रिमूव होने के बाद इट इज ऑन अप्रूवल बेसिस, इट इज नॉट एक्चुअल सेल। अब एक्चुअल सेल नहीं है तो रिमूवल से हम लोग 6 मंथ तक के काउंट कर लेते हैं। अभी जब सेल ही नहीं है वो, अगर वो सेल ही नहीं है, क्योंकि सामने वाला क्या करेगा, उसको रिजेक्ट भी कर सकता है, ठीक है। तो अब अगर सेल नहीं है तो आप उस केस में कितना वेट करेंगे कि जीएसटी पे करना है, कब पे करना है जीएसटी, तो ज्यादा से ज्यादा आपको रिमूवल डेट से कितना मिलेगा, 6 मंथ तक का टाइम मिलेगा, ठीक है। तो अप्रूवल आए ना आए उससे हम लोग को अभी लेना देना नहीं है, ठीक है। सो ज्यादा से ज्यादा डेट ऑफ रिमूवल प्लस 6 मंथ। डेट ऑफ इनवॉइस, अगर आपने इनवॉइस ही इशू कर दिया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, डेट ऑफ पेमेंट अगर है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सब में से जो भी अर्ली डेट होगी वही आप यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। तो सेल ऑन अप्रूवल बेसिस उसको बोलते हैं। लास्ट वाले कॉन्सेप्ट में कंटिन्यूअस सप्लाई में तो कुछ करना नहीं है आपको, सिर्फ डेट ऑफ रिमूवल, डेट ऑफ सक्सेसिव स्टेटमेंट और डेट ऑफ पेमेंट का अर्ली आपको ले लेना होता है, ठीक है। कंटिन्यूअस सप्लाई का मतलब आपको समझना चाहिए कि कंटिन्यूअस सप्लाई क्या होता है कि आप भेजते रहते हैं, जैसे कि गुड्स आता रहता है आपके, मिल्क जो है आपके घर में हर डे डेली आता रहता है, दैट इज कंटिन्यूअस सप्लाई। और आप डेली पेमेंट नहीं करते, डेली पेमेंट करेंगे तो आप उसको कंटिन्यूअस सप्लाई नहीं बोल सकते, ठीक है। आपको क्या करते रहते हैं, आपको इशू होता रहता है वो स्टेटमेंट, आप क्रेडिट कार्ड का देखा है आपने, पेमेंट करते रहते हैं, ठीक है। हाँ आप सर। खरीदते रहते हैं, तो एक बार वो कंटिन्यूअस आप परचेस करते रहते हैं, और एक डेट आती है आपको स्टेटमेंट इशू होता है ना। तो स्टेटमेंट इशू होता है मतलब सामने वाला आपसे बोलता है कि इतना पैसा है, ठीक है, तो आपका स्टेटमेंट इशू हो गया, ठीक है, और आप एक दिन क्या करते हैं, उसको पेमेंट करते हैं। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई। तो सर हम लोग सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस का क्वेश्चन करेंगे, यस हम लोग क्वेश्चन करेंगे बेटा, टेंशन की बात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर है एक क्वेश्चन, तो डेट ऑफ रिमूवल में क्या प्लस करना था आपको, 6 मंथ आपको प्लस करना है, ठीक है। तो अगर मैं 2019 में अगर मैं 6 प्लस कर दूं तो वो तो दूसरे ईयर में चला जाएगा, पहली बात तो कौन सा मंथ आएगा,
जून 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 आ आएगा जाएगा, जून आ जाएगा, जून 12 जून हो जून। जाएगा करेक्टली एकदम, क्योंकि 6 मंथ बोला है, डेज की तो किसी ने बात ही नहीं किया है ना। तो डेट ऑफ रिमूवल प्लस 6 मंथ आपको करना है, एक कॉलम बनाना है, जैसे मैंने आपको अभी डेट ऑफ सॉरी इनवॉइस डेट प्लस 30 किया था, वैसे ही डेट ऑफ रिमूवल प्लस 6 मंथ आपको बनाना है, ठीक है, अप्रूवल बेसिस में। और देखो बच्चों ने कितनी मेहनत की होगी, मतलब ये क्वेश्चन आया ही नहीं था एग्जाम में और उन्होंने इसको सॉल्व किया इस तरह से, मतलब उन्होंने 6 मंथ कैलकुलेट किया, उसका अर्ली देख के उन्होंने लिखा। तो देखा जाए तो मतलब आप जब क्वेश्चन को समझते नहीं है करेक्ट तरीके से, वो दिया होगा क्वेश्चन में कि गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, तब आपको ये करना है। और ये क्वेश्चन एकदम ना के बराबर होता है, लेकिन जब से ऑब्जेक्टिव्स वाला पार्ट हो गया तब वो लोग ऑब्जेक्टिव्स में पूछ लेते हैं, ठीक है, एटलीस्ट थ्योरी पूछ लेते हैं कि गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस में डेट ऑफ रिमूवल में आप प्लस करते हैं कि डेट ऑफ इनवॉइस में आप प्लस करते हैं कि क्या, हाँ ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। तो डेट ऑफ रिमूवल प्लस 6 मंथ आपको करना है, तो 12 दिसंबर का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 जून 2020 हो जाएगा, ठीक है। 15 दिसंबर, ये सब दिसंबर ही है तो सारे जून में चले जाएंगे, ठीक है। तो इट विल बी 15 जून 2020, 16 जून 2020, 20th जून 2020, 21 जून 2020 एंड 25th जून 2020 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इनवॉइस डे प्लस 6 मंथ हो गया, डेट ऑफ इनवॉइस आपको यहाँ पे दी हुई है और डेट ऑफ पेमेंट 2 है, ठीक है। एक्सेप्टेंस, अच्छा एक्सेप्टेंस तो आपको चाहिए ही नहीं, यहाँ पे ये वाले कॉलम का कोई लेना देना नहीं है, और डेट ऑफ पेमेंट आपका यहाँ पर है, ठीक है। तो मैं कंपेयर करूंगा रिमूवल प्लस 30 में, इनवॉइस डेट में और पेमेंट डेट में, विच एवर इज अर्लियर। तो एक पहला वाला तो करके देखते हैं, बाकी सब आप लोग कर लें, एग्जाम्पल मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। सो मैं कॉलम पहले तो कौन से बनाऊंगा, जो दिए हुए हैं वही बना दो। डेट ऑफ रिमूवल आपको चाहिए, डेट ऑफ रिमूवल प्लस 6 मंथ, ठीक है। इसके अलावा आपको जो चाहिए उतना ही बना, डेट ऑफ इनवॉइस चाहिए आपको और डेट ऑफ पेमेंट चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे कैलकुलेट होगा टाइम ऑफ सप्लाई। तो अगर मैंने इसको करेक्टली इसको किया है सीरीज में, तो ये ए बी एंड, ये अगर इसको ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो इट विल बी अर्लियर ऑफ व्हाट, अर्लियर ऑफ बी सी एंड डी, है ना। ये काउंट नहीं होगा बेटा रिमूवल, हाँ सर। ठीक है, ये ध्यान देना है। आपको रूल्स याद होते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। अर्लियर ऑफ बी सी एंड डी, एक बार आपने 6 मंथ कैलकुलेट कर लिया तो आपको जो कैलकुलेट किया हुआ वही आपको याद रखना है, बाकी कुछ आपको याद नहीं रखना, तो इसको, ठीक है। तो ये सीरियल नंबर का भी मैं ले लेता हूँ थोड़ा सा एरिया, ओके। इसको बाकी का काम फिल करने का आपका हो जाएगा। तो ये 12/12/2019 है, तो वी विल ऐड 6 मंथ, तो ये हो जाएगा 12/6/2020। 2020। हाँ, डेट ऑफ इनवॉइस इज 6/7/2020 और डेट ऑफ पेमेंट इज 30th May 2020, ठीक है। नाउ व्हाट इज द अर्लियर, 30th May 2020। 30th May, 30th May 2020, ठीक है। लाइक दैट आपको क्या करना है, ये पूरे आपको सॉल्व करना है, हो जाएगा, कोई दिक्कत है। हाँ सर सर, हो जाएगा जी। सीधा 6 मंथ्स ऐड कर देना उसमें, मतलब बस डेट्स का हाँ, आगे पीछे होगा ना सर। कहाँ होगा आगे पीछे, मतलब 12, अभी 12 से आपने डायरेक्ट 12 जून डाला ना, तो उसमें अगर एग्जैक्ट देखने जाएंगे तो 14 जून है। कैसे रे। सर वो 31 ऐसा होता है ना बीच में, 30, 31। बट यहाँ पे वही तो मैं बोल रहा हूँ, आपको डेज नहीं बोला है ना, हाँ they सर, are वही not डेज नहीं considering बोला है days, खाली। they are saying month। अभी देखो 30 डेज में और 1 मंथ में बहुत फर्क होता है, इट इज नॉट ऑलवेज 30 डेज इन अ मंथ, ठीक है। तो एज पर रूल आपको मंथ ऐड करना है, आपको डेज ऐड नहीं करना है। डेज ऐड करना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। फिर 12 में अपन कितना डेज ऐड करते हैं, फिर उसके बाद फिर एक एक करके हर महीने का क्या करना होता है, आपको डिडक्ट करते जाना था उसमें।
So तो that इसलिए is, पूछा सर क्योंकि डेट अगर बहुत अगर क्लोज आए मींस अगर 6 मंथ्स ऐड करके डेट ऑफ इनवॉइस उसका एकदम क्लोज आए तो फिर वो इसलिए पूछूंगा। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आपको डेट ऑफ रिमूवल में डायरेक्टली 6 मंथ ऐड कर देना, दैट्स इट, नथिंग एल्स। ठीक है, इज देयर एनी अदर कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। नो सर। ये बहुत इजी है, कहाँ गया सक्सेसिव वाला, कंटिन्यूअस सप्लाई का बहुत इजी है, सिर्फ इसमें से आपको अर्ली लेना है, इनवॉइस, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और पेमेंट, देख लो सिंपल। ठीक है, डेट ऑफ रिमूवल, डेट ऑफ स्टेटमेंट और डेट ऑफ पेमेंट में से आप अर्ली ले लेंगे, तो अगर इन तीनों में आप देखेंगे तो आपका टाइम ऑफ सप्लाई क्या आएगा? अरे बोलो, तीनों में से अर्ली क्या आया? हाँ सर 6 नवंबर। 6 6 नवंबर नवंबर इज अर्ली। ठीक है, और यहाँ पर चेक करेंगे आप तो 4th अक्टूबर है। 4th अक्टूबर। इज देयर एनी रिक्वायरमेंट? ये वैसे क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, बट इसमें आपको इसका थ्योरी इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको दे दिया है कि अर्ली क्या होगा। ठीक है, ये इसमें एक चेंजेस हम लोग को यहाँ पे करना है, सिर्फ ये जो यहाँ पर डालने हैं, अभी ये पीडीएफ है, मुझे इसको वर्ड में कन्वर्ट करके इसको एडिट करना पड़ेगा, अदरवाइज मैं यहीं पे इसको एडिट कर देता। तो इधर पे खाली डेट ऑफ पेमेंट मुझे ऐड करना है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। ओके, so if there is any question, any concern, we have completed goods. Now only two part is remaining that we will cover tomorrow, that is the forward case of service and reverse case of service, that's it. So service part is pending, goods का मैंने सारा complete कर दिया, goods में movable, immovable, ठीक है, उसके बाद फॉरवर्ड तो दोनों में आता है, मूवेबल इमूवेबल में आता है, रिवर्स हम लोग ने किया इनवॉइस डेट प्लस 30, दैट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने गुड्स ऑन अप्रूवल किया और गुड कंटिन्यूअस सप्लाई हम लोग ने कर लिया। ठीक है, दिस इज ओवर नाउ, इतना ही गुड्स के केस में है, वो भी हम लोगों ने एडिशनल ही पढ़ लिया है, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल। अगर इसके ऊपर आप प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ये थोड़ा कम चांसेस है कि इसके ऊपर आएगा, क्योंकि उन लोग ने कभी आज तक के आरसीएम भी पूछा नहीं एग्जाम में, तो वो गुड्स और सर्विस ऐसा कॉमन, मतलब जो नॉर्मल केस होता है फॉरवर्ड का वही पूछता है। तो गुड्स के केस में तो अर्ली लेके छोड़ देना होता था, अभी नया उसके अंदर भी ऐड हो गया, पहले तो सिर्फ बच्चों को इतने ही सिखाते थे हम लोग अर्ली ले लो, बट अभी कैसा हो गया है, उसमें पेमेंट डेट का भी कॉन्सेप्ट आ गया कि पेमेंट डेट नहीं कंसिडर करते हैं गुड्स के केस में, वो भी एक केस आ गया। ठीक है, बट पहले तो और इजी था वो, कि गुड्स का अगर नॉर्मल केस है तो उसको खाली अर्ली लेके छोड़ देना है। एंड जो टीवाई वेब का फर्स्ट इंट्रोडक्शन था जीएसटी का, उसके अंदर पहला जो प्रैक्टिकल पूछा था वो फॉरवर्ड गुड्स का ही पूछा था, बच्चों को कुछ नहीं करना था, बच्चों को तीनों डेट में से सिर्फ अर्ली लिख लेना था। अब उसमें क्या क्या किया है किसी ने, बाप रे बाप, वो उनके ऊपर। ठीक है, लेकिन आप अगर रूल को करेक्टली समझ लेते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, ये एक पेज आपका डिसाइड करेगा, इसमें से थोड़ा सा चेंजेस करके मैं आपको वापस से इसको फॉरवर्ड करता हूँ। ठीक है, इफ देयर इज नो क्वेश्चन, नो कंसर्न, तो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ, बहुत लोग वेट कर रहे हैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करने का, तो कर देता हूँ।